Huh? Hallelujah. Praise the name of the Lord. Hallelujah. We bless you, Jesus of Nazareth. We glorify your holy name. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Lord, we bless your name. Lord, we bless your name. Bless your name. Hallelujah. Lord, we bless your holy name. Lord, we bless your holy name. Lord, we bless your holy name. Bless your holy name. Lord, we praise you. Hallelujah. We magnify you, Jesus of Nazareth. Hallelujah. 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 Praise your holy name, Jesus of Nazareth. We praise you. Hallelujah. Lord, we come before your throne of grace this evening to magnify your name, to glorify you, Lord. Hallelujah. To glorify you, Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus of Nazareth. Thank you, Jesus of Nazareth. Thank you, Jesus of Nazareth. We bless you, Lord Jesus. Magnify your holy name. Hallelujah. Magnify you. Magnify you. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Dhanyavad ho. Hallelujah. Jesus, we bless you for this evening, Lord. Lord, we come at the foot of the cross, Lord, and we come right under the blood that Yahushua HaMashiach shed. We come under the blood of Yahushua. Lord, I invoke the blood over everybody that is joining us live. Lord, I release your blood. I release your blood, Lord. I release your blood, Lord. I invoke the blessing of the blood. I release the blessing of the blood. I release the blessing of the blood. Hallelujah. I increase the blessing of the blood, Lord Jesus. Lord, I invoke the blessing. I invoke the blessing. There is in the blood of the Lamb. I invoke the blessing. I invoke the blessing. Lord, I invoke the precious blessing that is in the blood of the Lamb. I invoke the precious blessing, Lord, blessing in the blood. I invoke, Lord. I invoke, Lord. I invoke, Lord. May the blessing of the blood of Jesus be unleashed now. Hallelujah. Hallelujah. Favor and glory and power and virtue and healing and deliverance that is in the blood of Jesus be unleashed now. Lord Jesus, let there be the realm of the blood of the Lamb all around us. Let there be the dimension of the blood of Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We bless you. We praise you. Hallelujah. Lord Jesus, we magnify your name. We magnify your name. Lord Jesus, we magnify your holy name. Lord Jesus, we magnify your holy name. Magnify your holy name. Lord Jesus, we magnify your holy name. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus of Nazareth. Thank you, Lord Jesus of Nazareth. Thank you, Lord Jesus of Nazareth. Thank you, King of glory. Thank you, King of glory. Thank you. Thank you, King of glory. Hallelujah. Lord, we bless your name. Lord Jesus, we praise your holy name.
Lord Jesus, we praise your holy name. We praise your holy name. Hallelujah. तेरे लहू की जय हो। यीशु मसीह आपके पवित्र लहू की जय हो। आपके पवित्र लहू की जय हो। पवित्र लहू की जय हो। हालेलुया। Thank you, Lord Jesus of Nazareth. Thank you, Lord Jesus of Nazareth. Thank you, thank you, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We bless your holy name. Lord, we bless your holy name. Hallelujah. Hallelujah. Lord, we magnify you. Lord Jesus, we magnify you. Hallelujah. Lord Jesus, we magnify you. Magnify you. Be exalted, Lord, this evening. Be exalted, Lord. Be exalted. Be exalted, Jesus of Nazareth. Be exalted, Jesus of Nazareth. Hallelujah. Be exalted, Jesus of Nazareth. Be exalted, Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah. Hallelujah. Lord Jesus, pour out your Spirit upon us, Lord. Lord Jesus, pour out your Spirit. Pour out your fresh unction, Lord Jesus. Pour out your fresh unction, Lord. प्रभु तेरी हजूरी का ताज़ा मसा, नया मसा हमारे ऊपर खोल खुदावन। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं। हालेलुया। प्रभु हम तेरे नाम को ऊंचा करते हैं, तेरे नाम के आगे झुकते हैं। प्रभु तेरी स्तुति गाते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह, अपनी हजूरी को खोलिए खुदावन। अपनी हजूरी को खोलिए। जिंदा खुदावंद यीशु मसीह, अपनी हजूरी को खोलिए हमारे ऊपर खुदावंद। आपका धन्यवाद हो। Father, I pray in the name that is above every name, the name of Yahushua HaMashiach. Lord, the name that you invoked on us, that we might be called by that name. Lord, that name is on us. You placed that name on us. Hallelujah. Lord, when you were so wroth and so angry, you said unto King Yahkoniah, you said, I take my name away from you. And you said, now you will be Koniah. You took your name away from him because he did not walk in your ways. He trampled your covenant under his foot and he walked away. Hallelujah. And he led Israel away from the living God. And he made people of Israel worship Baalim and the Ashtoreth. He made them worship the stars of the sky. Hallelujah. Thank you, Father, that you in your love and in your kindness have invoked your name on us. खुदावंद, तेरे लहू की कुदरत को मैं तेरे लोगों के ऊपर खोलता हूँ. Hallelujah. Lord, I release the power, the anointing of your blood, Lord. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you. Thank you, Jesus. We give you praise and we give you glory. We give you honor. Lord, we bless your holy name. In Jesus' mighty name. Amen. Hallelujah. Hallelujah. I greet you all in Jesus' wonderful name. सबको जय यीशु मसीह की. मैं आपको एक बड़ा सॉम्बर वचन देने जा रहा हूँ. सॉम्बर का अभिप्राय कि बहुत गंभीर वचन. तो मैंने इसको फेसबुक पे ऑलरेडी पोस्ट किया है, लेकिन मैं इसकी गहराई में आपको लेके जाना चाहता हूँ. भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पृथ्वी के ऊपर बहुत ही भयंकर समय आ रहे हैं.
हम बहुत टेरेबल टाइम से गुजर रहे हैं। बहुत बुरे समय में हम ऑलरेडी प्रवेश कर चुके हैं। ये वायरस, कोरोना वायरस, एक जजमेंट है। इट्स अ पेस्टिलेंस दैट इज कम फ्रॉम अबव एंड इट इज जजिंग द नेशंस। ये पृथ्वी के ऊपर कयास ला रही है। इस पेस्टिलेंस का मकसद पृथ्वी को कैओटिक करना है, पृथ्वी के ऊपर अराजकता फैलाना है, पृथ्वी के ऊपर लोगों के दिलों में भय, डर लाना है और संसार के अंदर फाइनेंशियल मेल्टडाउन, संसार के अंदर व्यवस्था को कुचलना है, संसार के अंदर स्केर्सिटी लाना है, अकाल लाना है। और ये सब चीज़ें आप देखेंगे धीरे 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 होती जाएंगी। जो प्रभु का सच्चा कलाम देने वाले लोग हैं ना, उनको बहुत सारे लोग डूम एंड ग्लूम प्रॉफिट बोलते हैं, लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये परमेश्वर के सच्चे नबियों की भविष्यवाणियाँ हैं जो पृथ्वी पे पूरी होने जा रही हैं। इस पृथ्वी पे शैतान बहुत जोर मार रहा है इस दुनिया की गवर्नमेंट को, इस दुनिया के निज़ाम को पूरी तरह से अपने हाथ में लेने के लिए। उसको जो रोक रहा है वो है होली स्पिरिट। Satan wants this world to turn into absolute chaos, and it has already begun. This coronavirus is leading the mankind into an utter chaotic condition. There will be absolute financial meltdown. There will be a condition of complete civil unrest. And bizarre phenomena will happen. And there will be famine and scarcity of food. It is coming, it's coming, mark my word. There are terrible times that are going to come in the United States of America. This election that Trump is going to contest, it will be literally fighting against the forces of darkness. The powers of darkness, the elite, the globalists, the liberals, the Luciferian, the Illuminati, the Freemasonries, they who control the world in their hand, and also the apostate church, they are not going to let him come that easily, even though he will win. But they will create havoc in the United States of America. It is beginning, it has already begun, it's going to get worse in September, October, November. पृथ्वी के ऊपर बुरे समय आ रहे हैं। अपने आप को तैयार कीजिए। Repent, turn to God. Turn to God, seek Him, bend your knees before Him, ask Him to pardon you. Quit your evil ways. Quit every dark sin that lurks on the inside of you, every bad habit and every sinful thing that so easily besets you. Go before the Lord and confess and have one-on-one relationship with Him. Come out of this, organized churchianity, this institutionalized religion. Come out of it and turn to Him. बहुत बुरे समय पृथ्वी पे आने वाले हैं। हालेलुया। तो मैं आज आपको जो वचन देने जा रहा हूं, मैं चाहता हूं आप जल्दी से दूसरा राजा और उसका 17 अध्याय, टर्न टू 2 किंग्स एंड चैप्टर नंबर 17, दूसरा राजा उसका 17 अध्याय निकालिए। 2 किंग्स चैप्टर नंबर 17 एंड आई एम गोइंग टू रीड वर्स नंबर 6। दूसरा राजा 17 अध्याय और उसका 6 वचन आपके लिए पढ़ता हूँ, सुनिए ध्यान से। होशे के 9वें वर्ष में अशूर के राजा शोमरोन को ले लिया और इसराइल को अशूर में ले जाकर हले और गोजान की नदी हाबोर के पास मादियों के नगरों में बसा दिया। होशे नबी के भविष्यवाणी का 9वां होशे नबी की भविष्यवाणी का 9वां साल है। असीरिया का राजा आया, वो सामरिया को, नॉर्दर्न किंगडम को, उत्तरी इज़राइल को गुलाम बना के ले गया और हाला और हबोर जो इलाका है वहाँ पे जो गोजान दरिया है उसके पास बिठा दिया, जहाँ पे मादी पारसी लोग रहते थे।
असीरिया ने 10 गोत्रों को गुलाम बनाया। नॉर्दर्न किंगडम में 10 गोत्र रहते थे, 10 गोत्रों को उसने गुलाम बनाया और सबको लेके जिसे आज हम कहेंगे नॉर्दर्न ईरान, उत्तरी ईरान, उस इलाके में बसा दिया गुलाम बना के। और ये साउथ साइड है कैस्पियन सी की। अगर मेरे पास मैप और पूरा प्रोजेक्टर हो तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी है ये पूरी, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग राष्ट्र, अलग अलग कौमें, अलग अलग देश आज भी बैठे हुए हैं जिनका बहुत सिलसिलेवार अध्ययन करना बहुत अद्भुत होगा। तो इज़राइल को गुलाम बना के 10 गोत्रों को लेके जाना इतना आसान भी नहीं था सीरिया के लिए। उन्होंने सीज डाल के रखी, जो उत्तरी इज़राइल था उसके इर्द गिर्द उसने उसको घेरा डाला और 3 साल तक दुश्मन की सेना वहीं पर रही। और आपको मालूम, उस 3 साल के दौरान परमेश्वर के सच्चे नबी उत्तरी इज़राइल के राजाओं को ये कहते रहे कि प्रभु की ओर मुड़ो, तौबा करो, लेकिन झूठे नबी उन्हें दिलासा देते रहे। झूठे नबी पॉजिटिव प्रीचिंग करते रहे, ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव वर्ड, और एक्सपेक्ट, कीप होप, और मोटिवेट करते रहे उन लोगों को, जैसा आज भी कई लोग कर रहे हैं। सच्चा कलाम नहीं दे रहे, लोगों को आशा दे रहे हैं, जबकि परमेश्वर के क्रोध की बाढ़ आई हुई है। बजाय इसके कि ये पैगाम दें कि पश्चाताप करो और प्रभु की ओर मुड़ो, वो उनको झूठा दिलासा और झूठी आशा दे रहे हैं। 3 साल तक उन्होंने घेरा डाले रखा, लेकिन क्या हुआ वो अंत में उनको गुलाम बना के ले गए। दूसरा राजा 17:6 पढ़ते हैं, कैरिड अवे टू असीरिया। वो 718 बीसी में और फिर 722 बीसी में कंप्लीटली ले गए उनको गुलाम बना के। हालेलुया। लेकिन जब अशूर इज़राइल को गुलाम बना के ले गया, उसके तुरंत बाद अशूर का पतन होना शुरू हो गया। अशूर अपने अंदर से टूट गया, पॉलिटिकल सिस्टम कोलैप्स हो गया, उनका अंदर ही अंदर फूट पड़ गई और उसको मीड्स एंड पर्शियंस ने जीत लिया। उनके ऊपर अटैक हुआ और मीड्स एंड पर्शियंस ने उनको जीत लिया। लेकिन अगर आप पढ़ेंगे, जो मैंने यहाँ पे आपको नोट्स डालें, पोस्ट डाला है, जब असीरिया अपने आप में टूट रहा था तो जो इस्राएली लोग थे उन्होंने बीच में अपने गुलाम बना के ले जाने वालों के विरोध में बलवा कर दिया, गुरिल्ला वॉर शुरू कर दी उन्होंने अपने कैप्टर्स के खिलाफ। लेकिन वो पूरी तरह तो टेबल टर्न नहीं कर सके। इज़राइली लोग असीरिया की गुलामी से तो नहीं निकल सके, लेकिन उन्होंने उनको कमज़ोर कर दिया। कमज़ोर इतना कर दिया कि बेबीलोनियन और जो मीड्स थे वो आए और उन्होंने निनवे को कैप्चर कर लिया 612 बीसी में। और इज़राइली लोगों ने क्या किया, वहाँ पे रहते इज़राइली लोगों ने अपना एक बैंड बना लिया, ग्रुप बना लिया, लुटेरों का ग्रुप, जो कि गुरिल्ला वॉर लड़ते हैं, घोड़ों की बैक के ऊपर रहते हैं। वैसा एक ग्रुप बनाया जिसे बाद में स्किथियन कहा जाने लगा। अगर आप इतिहास पढ़ेंगे स्किथियन लोगों का, ईस्टर्न यूरोप में उनकी हिस्ट्री है। स्किथियन लोग इतने खूंखार किस्म के गुरिल्ला होते थे, लड़ाई में बहुत ही खतरनाक, और युद्ध में अपने शत्रु को धूल चटा देते थे। तो इज़राइली स्किथियन बन गए। और अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, बहुत फेमस जो हिस्टोरियंस हैं, they recognize them as fierce and warlike people. Centuries later, these people would merge with other people to become the Parthian, and the scourge of the Roman Empire. पार्थी लोगों का अगर आप अध्ययन करेंगे, पार्थियंस, पार्थी लोग, आपको मालूम ये स्किथियन, पार्थियन, इन सब का जिक्र बाइबल के अंदर है। रोमियो की पत्री में प्रेरित पौलुस इनका जिक्र करता है। और फिर पंतेकुस के दिन जब पवित्र आत्मा उतरा 120 लोगों के ऊपर जो यहूदी थे, और उस दिन पंतेकुस को मनाने के लिए जितने यहूदी संसार में तितर बितर हुए थे
उनमें से पार्थियन भी थे, उनमें स्किथियन भी थे, अलग अलग देशों से ये सब लोग आए हुए थे और पवित्र आत्मा इनके साथ बातें कर रहा था। इजरायली जो अनपढ़ लोग थे, मछुआरे थे, किसान थे, साधारण लोग थे, उनके द्वारा पवित्र आत्मा इनकी भाषा में बोल के इन्हें परमेश्वर के राज्य का, परमेश्वर का जो नया राज्य पृथ्वी पे उतर आया था, उसका पैगाम दे रहा था। हालेलुया। तो आप पढ़ेंगे पार्थियंस को स्कर्ज ऑफ द रोमन एम्पायर कहा गया है। इन्होंने रोमी फौजों को, जो इतनी जबरदस्त और तगड़ी फौजें थी, यूफ्रेटस रिवर, फरात दरिया के आगे जाने नहीं दिया। थोड़ी इंडियन हिस्ट्री भी आप पढ़िए इंडस वैली की, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो अब पाकिस्तान में है, उसके अंदर इन वॉर्स का जिक्र है, आपको मिलेगा इन लड़ाइयों का जिक्र उनके अंदर। और स्किथियंस का, इन सब लोगों का रेफरेंस आपको हिस्ट्री की पुस्तकों के अंदर मिलेगा। हालेलुया। असीरिया गिर गया और इस्राएली लोग दूसरों के गुलाम हो गए और इन्होंने, कुछ लोगों ने जो स्किथियन थे, पार्थियन बन गए, इन्होंने एस्केप किया वहाँ से, कॉकस माउंटेन की तरफ से ये निकले और जिसे आज हम जॉर्जिया कहते हैं। जॉर्जिया के अंदर वही गोत्र हैं। इज़राइल के जो 10 गोत्र थे वो पूरे यूरोप के अंदर, यूरोपियन लोग जो हैं वो मोस्टली इज़राइल के खोए हुए गोत्र हैं। यहाँ तक कि जो अफ़गानी हैं वो भी इज़राइल के खोए हुए गोत्र हैं। उसी समय ये अलग अलग राष्ट्रों और देशों के अंदर डिस्पर्स हो गए। हालेलुया। और आमोस नबी की पुस्तक आप पढ़ें, आमोस नबी, तो उसका मैं आपको एक वचन देना चाहता हूँ। आमोस की किताब निकाल लीजिए, उसका 9 अध्याय, आमोस की पुस्तक 9 अध्याय और उसका 9 वचन सुनिए क्या कहता है प्रभु। एमस चैप्टर 9 वर्स नंबर 9। मेरी आज्ञा से इज़राइल का घराना सब जातियों में ऐसा चाला जाएगा जैसा अन्न चलनी में चाला जाता है, परंतु उसका एक भी पुष्ट दाना भूमि पर नहीं गिरेगा। एक बहुत खतरनाक जजमेंट ये नबी प्रोनाउंस कर रहा है इज़राइल के ऊपर, लेकिन इज़राइली लोग सच्चे नबियों की बात सुनना नहीं चाहते। वही दशा आज की कलीसिया की है। आज की कलीसिया सच्चा कलाम नहीं सुनना चाहती। सच्चे नबी बता रहे हैं कि कौन से समय में आप जी रहे हो। परमेश्वर का क्रोध भड़का है, अपने आप को परमेश्वर के आगे दीन करो। दूसरे नबी उनको ब्लेसिंग दे रहे हैं, वो भी मीटिंग्स कर रहे हैं, बरकतें बांट रहे हैं, बरकत जा रही है, ये आने जा रहा है, रियल एस्टेट आने जा रही है, बिजनेस बढ़ने जा रहा है, फलाना होने, ऐसा करके प्रचार कर रहे हैं। वो ये कलाम नहीं बता रहे उनको इस घड़ी का कि कौन सी घड़ी में हम हैं। ये यहोवा के कोप की घड़ी है, पृथ्वी की कौमों के ऊपर जजमेंट उतर रही है, यहोवा का क्रोध पृथ्वी के ऊपर आ रहा है, पेस्टिलेंस ऑलरेडी संसार के अंदर चल रही है और परमेश्वर चाह रहा है कि उसकी प्रजा उसके चरणों में तौबा करके आए ताकि यहोवा उन्हें क्षमा करे। ये नहीं सिखा रहे। वो अपना वही कारोबार, बिजनेस, बरकत देने जा रहा है, ये करने जा रहा है और बीमारियों का नाम ले लेके कैंसर को डांटता हूँ, किडनी के रोग को डांटता हूँ, डायबिटीज़ को डांटता हूँ, हड्डियों के रोग को डांटता हूँ, सारे बीमारियों के नाम रटे हुए उन्होंने और उनका नाम ले लेकर डांटते जा रहे हैं। अरे भैया, बाइबल बताती है केवल यीशु मसीह के नाम का ऐलान कर दे, बस। यीशु मसीह के नाम में हर रोग को चंगा करने की कुदरत है। हालेलुया। तो प्रभु यहाँ पे क्या कह रहा है आमोस नबी 9 अध्याय के 9 वचन में जैसे दानों को, ये तो पंजाबी में बोलते हैं छज विच पा के दाने छटना। गेहूं को क्या किया जाता है, उसके अंदर भूसा होता है जिसे तूड़ी बोलते हैं, उसको निकालने के लिए छट्टा जाता है। यहोवा कह रहा मैं ये काम करने जा रहा हूं इज़राइल के साथ। आई एम गोइंग टू सिफ्ट यू इन अ सीव। तुम्हारे में से भूसा निकालूंगा, हर तरह का पाप, दुर्गंध, गंदगी निकालूंगा। आमोस 9 की 9 में कह रहा है तुम्हें छज के अंदर डाल के छट्टा जाएगा और भूसा बाहर निकाला जाएगा। परमेश्वर अपने लोगों को कैसे अलग करेगा, कैसे साफ करेगा? उन्हें तितर बितर करके, जगत के अंदर दंड दे के तितर बितर कर रहा है। आप पढ़िए परमेश्वर के कलाम के अंदर परमेश्वर कैसे सफाई करता है, इसके पढ़िए हवाले, कलाम को पढ़िए, फिर आपको पता लगेगा परमेश्वर सफाई कैसे करता है। मत्ती 3 की 12
यीशु मसीह कलीसिया के अंदर खड़ा क्या कर रहा है भाई और बहनों? मत्ती 3:12 पढ़ लो। यीशु मसीह भूसे को अलग कर रहा है और गेहूं को अलग कर रहा है। ये काम हो रहा है इस समय। परमेश्वर क्लेंजिंग कर रहा है, क्लीनिंग कर रहा है, सफाई कर रहा है, भूसा निकाला जा रहा है। अब अगर आप कहें कि जैसे आप पहले जीवन जी रहे थे ना, एक टांग पाप की दुनिया में, दूसरी टांग परमेश्वर के राज्य में, भाई और बहनों मैं आपको बताना चाहता हूँ वैसा नहीं चलेगा। अपना जीवन सही कर लीजिए, वरना दंड के नीचे आप आ जाएंगे और बहुत भयंकर दंड पृथ्वी पे आ रहा है। मैं आपके लिए कुछ वचन पढ़ना चाहता हूँ। मैंने इस पोस्ट में डाले हैं सारे वचन। मैं सबसे पहले आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ भजन संहिता साम भजन संहिता 89 भजन संहिता आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ और उसका मैं आपके लिए पढ़ूँगा 89 का वर्स नंबर 25 पढ़ता हूँ। साम 89 वर्स नंबर 25। सुने क्या कहता है प्रभु। प्रभु कहता है मैं समुंदर को उसके हाथ से नीचे और महानदों को उसके हाथ से, साम 89 ही है ना ये? यस इट इज 89। मैं समुंदर को उसके हाथ के नीचे और महानदों को उसके दाहिने हाथ के नीचे कर दूंगा। हालेलुया। अब मैं एक वचन और आपके लिए पढ़ता हूँ। हालेलुया। वचन निकालिए आप। होशे नबी की पुस्तक, होशे नबी, बीच में लिखते जाइए प्लीज़। ये होशे नबी की पुस्तक, उसका 12 अध्याय और उसका पहला वचन। होशे 12 का पहला। सुने क्या कहता है प्रभु। होशे नबी की पुस्तक 12 अध्याय का पहला वचन। प्रभु कहता है एप्रैम पानी पीटता और पुरबई का पीछा करता रहता है। वह लगातार झूठ और उत्पात को बढ़ाता रहता है। वह अशूर के साथ वाचा बांधते और मिस्र में तेल भेजते हैं। क्या कह रहा है प्रभु? प्रभु बता रहा है इनका जीवन कैसा है, इफ्राइम का कैसा जीवन है। और वो पानी को पीट रहा है और हवा का पीछा कर रहा है, लगातार झूठ और उत्पात बढ़ा रहा है। उसका जीवन प्रभु के साथ सही नहीं है। हालेलुया। जिर्मिया नबी की पुस्तक निकालें जल्दी से। जिर्मिया उसका 3 अध्याय जिर्मिया नबी की पुस्तक का 3 अध्याय निकालिए। हालेलुया। जिर्मिया 3 अध्याय और उसका मैं 12 वचन से आपके लिए पढ़ता हूँ। जिर्मिया 3 का 12 से सुनिए क्या कहता प्रभु यहोवा। तू जाकर उत्तर दिशा में ये बातों का प्रचार कर। यहोवा की ये वाणी है, हे भटकने वाली इज़राइल लौटा। मैं तुझ पर क्रोध की दृष्टि ना करूँगा, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, मैं करुणामयी हूँ, मैं सर्वदा क्रोध ना रखे रहूँगा। केवल अपना ये अधर्म मान ले कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से फिर गई और तू हरे पेड़ों के तले इधर उधर दूसरों के पास गई और मेरी बातों को नहीं माना। यहोवा की ये वाणी है। मैंने आपको बताया बाबिलोन से सारे शैतानी पूजा पद्धति और हर तरह के शैतानी धर्मों का जन्म हुआ। वो क्या करते थे? वहाँ पे कौन सी पूजा होती थी? बालीमों की पूजा। और किसकी पूजा होती थी? पेड़ों की। हरे भरे पेड़ों के नीचे गई ग्रोव की पूजा। बालीम का मतलब है ये एक फर्टिलिटी कल्ट थे। फर्टिलिटी कल्ट, आदमी की पूजा और औरत की पूजा। और अगर आप ध्यान से गहराई में जाएंगे तो आदमी के पैदा करने वाले अंग की, जेनेटियल की, और औरत के पैदा करने वाले अंग की, दोनों की पूजा होती थी ये, जो बाबुल से शुरू हुई है। और तीसरी शैतानी पूजा थी आकाश के तारों की पूजा, राशियों की पूजा। ये 3 पाप इस्राएल ने किए जो बाबिलोन से शुरू हुए। और प्रभु ने कहा मैं तलवार भेजूंगा। फिर प्रभु ने कहा मैं अकाल भेजूंगा।
फिर प्रभु ने कहा मैं मरी भेजूंगा। फिर प्रभु ने कहा अगर फिर भी नहीं लौटे तो मैं बीस्ट भेजूंगा, जंतु। बीस्ट का मतलब कौन? बीस्ट गवर्नमेंट, बीस्ट की जो सरकार आ रही है, जंतु की, जो आने के मुहाने पे खड़ी है। वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ग्रेट अवेकनिंग, जिसके मुहाने पे आप बैठे हुए हो। जब पेस्टिलेंस आएगी, महामारी आएगी, महामारी के बाद अगली चीज बीस्ट है। बाइबल में लगभग 70 बार यहोवा परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें सजा दूंगा। और कैसे दूंगा? मैं तलवार भेजूंगा, मैं यहोवा कहता अकाल भेजूंगा, यहोवा कहता है मैं मरी भेजूंगा, पेस्टिलेंस। ये मरी चल रही है इस समय। और फिर कहता अगर तुम नहीं माने तो मैं बीस्ट भेजूंगा। ये चारों ही हैं घोड़े प्रकाशित वाक्य में। ये 4 घोड़े हैं। जो दूसरा घोड़ा है उसके ऊपर जो बैठा उसके हाथ में तलवार है। प्रभु कहता है मैं तलवार भेजूंगा। सिविल राइट्स होंगे, कौमों कौमों की लड़ाई होगी। दूसरी बात प्रभु कहता है मैं अकाल भेजूंगा। वो तराजू लेके जा रहा है जो उसके ऊपर बैठा। खाने पीने की चीज़ों की कमी होने वाली है पृथ्वी पे। बहुत ज़्यादा हाइपर इन्फ्लेशन होगी, चीज़ों की महंगाई 100 गुना बढ़ जाएगी। ये आने वाले टाइम में हो रहा है। इस साल में देखना आप क्या क्या घटने जा रहा है। हालेलुया। अमेरिका के अंदर बहुत कुछ होगा। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के महीने में जब इलेक्शन आएंगे, अंधकार का समय पृथ्वी पे आने वाला है। तो प्रभु के चरणों में आ जाओ भाई, तौबा करो, सच्चा जीवन जियो प्रभु के साथ, ताकि प्रभु दया करे, करुणा करे और यीशु मसीह की आमद में उसकी दुल्हन के साथ उठाए जाएं। हालेलुया। तो क्या कहता है प्रभु? प्रभु कहता है तलवार भेजूंगा। तलवार है दूसरा घोड़ा, रेड, खून है, खून वो तलवार लेके आ रहा है। उसके बाद स्केल्स पकड़ी हैं उसने, तराजू पकड़ा है, अर्थात खाने पीने की चीज़ें महंगी होने वाली हैं। उसके बाद मरी है। मरी जो है उसका नाम बताया है। वो घोड़े पे बैठा है थैनेटोस। थैनेटोस का मतलब मौत, और उसके पीछे है हेडीज। हेडीज का मतलब पताल। मौत एक दूत है, मौत एक आत्मा है, और पताल भी एक आत्मा है। मौत पताल के अंदर रहती है। और उस घोड़े पे आ रहे हैं बैठ के, जो पेल ग्रीन घोड़ा है। लेकिन ग्रीक में जो वर्ड है, ग्रीक वर्ड है क्लोरोस। ये वही वर्ड है जहाँ से अंग्रेजी का वर्ड निकलता है क्लोरोफॉर्म। ये इस चीज़ का सिग्नल है कि बायोकेमिकल वॉर आ रही है पृथ्वी के ऊपर। ये बायोकेमिकल वॉर का हिस्सा है जिस वायरस से आप गुजर रहे हो। रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल, परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा। हालेलुया। चाइना और रशिया कॉन्फेडरेशन बनाएंगे और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पे हमला करेंगे। आप देखिएगा, ये आने वाले समय में होने वाला है। हालेलुया। और क्या कहता है यिर्मयाह 3:13, 3 की क्या कहता है? हरे पेड़ों के पास गई। मैंने बताया आपको ये 4 चीज़ें प्रभु बोलता है। पहला है सोड, लाल घोड़ा, तलवार। दूसरा है काला घोड़ा, भूखमरी। तीसरा है पेल ग्रीन घोड़ा है, क्लोरोस। और इनके बाद सफ़ेद घोड़ा है। जो सफ़ेद घोड़े पे है वो बीस्ट है, एंटी क्राइस्ट है। हालेलुया। दुनिया का रूलर, शासक जो पृथ्वी पे आने वाला है। हालेलुया। और मैं पढ़ता हूँ आपके लिए यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 31 चैप्टर निकालिए। यिर्मयाह चैप्टर नंबर 31, यिर्मयाह 31 वर्स नंबर 10। सुने, हे जाति जाति के लोगों, यहोवा का वचन सुनो। दूर दूर के द्वीपों में भी इसका प्रचार करो। कहो कि जिसने इसराइलियों को तितर बितर किया था वही उन्हें इकट्ठा भी करेगा और उनकी ऐसी रक्षा करेगा जैसे चरवाहा अपने झुंड की रक्षा करता है। हालेलुया। प्रभु ने इज़राइल को ये कहा कि अगर व्यवस्था को मानोगे तो बरकतें ऐसी होंगी कि जिनका तुम बयान भी नहीं कर सकते। 28 अध्याय डिट्रॉनमी पढ़िएगा। व्यवस्था विवरण 28 में ऐसी अद्भुत नायाब बरकतें हैं।
अगर प्रभु की वाचा में चलोगे तो बरकतें बरकतें हैं, लेकिन अगर प्रभु की वाचा तोड़ोगे तो लानतें ही लानतें हैं। 15 आयत से लेके 28 अध्याय के अंत तक ऐसी खौफनाक लानतें हैं जो सब इज़राइल के ऊपर आई। प्रभु ने यहाँ तक कहा था कि तुम अपने बच्चों को पका के खाओगे, और इज़राइलियों ने अपने बच्चों को बना के मार के उनकी सब्जी बना के खाई। पढ़िए, व्यवस्था का श्राप बड़ा गंभीर है। लेकिन प्रभु ने उनसे वादा भी किया कि अपनी करुणा और दया के करके मैं तुम्हें वापस लौटा के लाऊंगा। हालेलुया। तुम्हें जहाँ पे तितर बितर किया है मैं वहाँ से इकट्ठा करूँगा। हालेलुया। जर्मिया 31 का 10 पढ़िए, जर्मिया 23 का 8 पढ़िए, जर्मिया 31 का 8, जर्मिया 3 का 18 पढ़िए। आपको परमेश्वर के अद्भुत प्रॉमिसेस मिलेंगे। हालेलुया। ये सब वचन आप अध्ययन करना स्वयं। 3 का 18 मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, या प्रभु क्या कह रहा है। हालेलुया। उन दिनों में यहूदा का घराना इज़राइल के घराने के साथ चलेगा, वह दोनों मिलकर उत्तर के देश में, इस देश में आएंगे जिसे उनके पूर्वजों को निज भाग करके दिया गया था। प्रभु कहता है मैं उनको लौटा के लाऊंगा, उन पे कृपा करूंगा, उनके ऊपर दया भी करूंगा। हालेलुया। और मैं यशाया नबी की पुस्तक में से आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। यशाया नबी की किताब निकालें और 11 अध्याय, यशाया नबी की किताब, यशाया 11, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11 आइजाया में। और यशाया 11 में से मैं आपके लिए पढ़ता हूँ 12 वचन, सुनिए। वह अन्य जातियों के लिए झंडा खड़ा करके इज़राइल के सब निकाले हुओं को और यहूदा के सब बिखरे हुओं को पृथ्वी की चारों दिशाओं से इकट्ठा करेगा। इस समय परमेश्वर इज़राइल में सभी यहूदियों को इकट्ठा कर रहा है। हालेलुया। ये समय बहुत ही अद्भुत समय है। होशे नबी की किताब उसके 11 अध्याय के 8 वचन से देखिए प्रभु का प्रॉमिस क्या है उनके लिए। हे एप्रैम, मैं तुझे क्यों कर छोड़ दूँ? हे इस्राएल, मैं क्यों कर तुझे शत्रु के वश में कर दूँ? मैं क्यों कर तुझे अदमा की नाई छोड़ दूँ और सबोईम के समान कर दूँ? मेरा हृदय तो उलट पुलट हो गया, मेरा मन स्नेह के कारण पिघल गया है। मैं अपने क्रोध को भड़कने ना दूंगा और ना फिर इफ्राइम का नाश करूंगा, क्योंकि मैं मनुष्य नहीं परमेश्वर हूँ। मैं तेरे बीच में रहने वाला पवित्र हूँ, मैं क्रोध करके ना आऊँगा। फिर प्रभु क्या प्रॉमिस करता है? वह यहोवा के पीछे पीछे चलेंगे। यहोवा उनका हृदय ऐसे बदलेगा कि वो यहोवा के पीछे पीछे चलेंगे। यहोवा उनको लौटा कर लेकर आएगा और उन पे अपनी करुणा करेगा। यशाया नबी की पुस्तक उसका 49 चैप्टर और उसमें से एक वचन आपके लिए पढ़ता हूँ। आइजाया 49 उसका पहला वचन, यशाया 49 का पहला वचन देखिए प्रभु क्या कहता है। अमोनियों के विषय में यहोवा कहता है, क्या इस्राएल के पुत्र नहीं है? क्या उसका कोई वारिस नहीं रहा? फिर मलकाम क्यों गाद के देश का अधिकारी हुआ और उसकी प्रजा क्यों उसके नगरों में बसने पाई है? यहोवा की ये वाणी है, ऐसे दिन आने वाले हैं, मैं अमोनियों के रब्बा नाम नगर के विरुद्ध युद्ध की ललकार सुनवाऊंगा और वह उजड़कर खंडर हो जाएगा और उसकी बस्तियां फूंक दी जाएंगी। प्रभु यहोवा क्या कर रहा है? जिन जिनों ने इज़राइल को सताया, जिन जिन देशों ने इज़राइल को गुलाम बनाया, असीरी में रखा, अब यहोवा उनको सजा दे रहा है। हालेलुया। प्रभु यहोवा कहता है मैं उनको सजा दूंगा और दंड दूंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर एक अद्भुत काम पृथ्वी में कर रहा है। बहुत ही अजीब समय है। प्रकाशित वाक्य लिखने वाला प्रभु का दास यूहन्ना कहता है ये वो समय है जब धर्मी और धर्मी होता जाएगा और अपवित्र बंदा और अपवित्र होता जाएगा। जो प्रभु की आत्मा में चलेंगे वो ज्योति से भरते जाएंगे और जो पाप में जिएंगे वो पाप के अंधेरे में खो जाएंगे। ऐसी दशा में पहुंच जाएंगे जहां वो वापस लौट नहीं पाएंगे। इसलिए ये समय प्रभु के चरणों में पश्चाताप करने का और प्रभु की हजूरी में ठहरे रहने का और प्रभु के चरणों से लिपटे रहने का है। इसलिए प्रभु की ओर मुड़े मुकम्मल तौर पे।
अपने जीवन, अपने पूरे घराने को प्रभु के चरणों में लाएं, अपने जीवन के हर एक पहलू को यीशु मसीह के चरणों में लाएं। हर एक गुप्त पाप, हर एक उलझाने वाला, गिराने वाला पाप जो बार बार गिराता है, उसका परित्याग करें। प्रभु का दास पौलुस कहता है, काली रात बीत गई है, देखो दिन चढ़ने वाला है, इसलिए आओ हम ज्योति के वस्त्रों को धारण करें। फिर कहता है, शरीर और शरीर के घिनौने काम करने वाले अंगों को मार डालो, क्योंकि बिना पवित्रताई के कोई भी यहोवा के चेहरे को नहीं देखने पाएगा। हालेलुया। तो प्रभु की ओर लौटें और ये सच्चा पैगाम, सच्चा कलाम दुनिया को दें जाके। उन्हें बताएं ये सच्चा कलाम कि ये घड़ी पृथ्वी पे आई है, जजमेंट हो रही है, सजा की घड़ी है, प्रभु की ओर पलटें। प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय यीशु मसीह की। आमीन।